तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गांधी और नेहरू खानदान की मुख के लीदने अज़्म कुर्बानुहे का भरपूर दिफा करते हुए एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान ने इस मुल्क की आज़ादी और तामीर के लिए बेशुमार त्याग और कुर्बानियां पेश की। वजीर आला के मुताबिक नेहरू खानदान बुनियादी तौर पर एक दौलतमंद और अमीर घराना था। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि इस खानदान ने मुल्क की खातिर न सिर्फ अपनी जानें कुर्बान की बल्कि अपने तमाम असासे भी मुल्क पर कुर्बान कर दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर एक संगीन और बड़ा रास्त सियासी हमला करते हुए इल्जाम लगाया। वजीर आला ने यह दावा किया कि महात्मा गांधी को कत्ल करने वाली जमात और बीजेपी एक ही जमात है। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में अखबार नेशनल हेराल्ड के नुमायां किरदार का भी जिक्र किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज़ादी दिलाने में इस अखबार ने एक अहम और तारीखी किरदार अदा किया था। ये बयान मुल्क की तारीख, गांधी खानदान की कुर्बानियों और सियासी इल्जामात पर जोर देता है। ఈ దేశం కోసం మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు मैं तेलुगु में बोल के हाथ खड़ा रखा। మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆగర్భ శ్రీమంతులు. ఆ రోజుల్లోనే వేలాది కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను దేశ స్వతంత్రంలో పెట్టుబడిగా పెట్టడమే కాకుండా దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో వాళ్ళ ఆస్తులన్నిటిని కూడా ఈ జాతికి, ఈ దేశానికి అంకితం చేసింది. మిగిలిపోయిన కొన్ని ఆస్తులను కూడా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు దేశ ప్రజలకు అంకితం చేసి వారి ప్రాణాలనే కాదు వారి ఆస్తులను సర్వం ఈ దేశం కోసం త్యాగం చేసి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన మోతీలాల్ నెహ్రూ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు 10 సంవత్సరాలు జైలు జీవితం గడిపిండు దేశ స్వతంత్రం కోసం. మహాత్మా గాంధీ గారు 30 సంవత్సరాలు స్వతంత్ర పోరాటమే కాదు, మహాత్మా గాంధీ గారు 30 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కొట్లాడిన మహాత్మా గాంధీ గారి మీద లాటెత్తడానికే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భయపడ్డారు ఆనాడు. కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వారసులు మహాత్మా గాంధీ గారిని దారుణంగా హత్య చేసిన రాజకీయ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆ పార్టీ ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి మీద నేషనల్ హెరాల్డ్ అనే పత్రిక దేశ స్వతంత్రం కోసం పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రారంభించారు. వారి సొంత ఆస్తులను పెట్టి నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికను ప్రారంభించారు. ఆ పత్రికను ఆనాడు ఉధృతంగా దేశ స్వతంత్ర పోరాటం జరుగుతున్నప్పుడు దేశం నలుమూలలు జరుగుతున్న పోరాటాలను ఆ పత్రికలో ప్రచురించి ప్రజలకు ఒక స్ఫూర్తిని, ఒక పోరాట నాయకత్వాన్ని రగల్చి ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించారు. अदाकार और सियासतदान पवन कल्याण की जानिब से किए गए नर दरियश्ती के तबसरों पर तेलंगाना की कांग्रेस वज़रा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इज्तिमाई हमला शुरू कर दिया। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस सिलसिले में सख्त बयान जारी किया। वजीर मौसूफ ने पवन कल्याण पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बगैर किसी मुनासिब समझ के बातें कर रहे हैं और तेलंगाना के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर धमकी दी कि अगर पवन कल्याण ने फौरी तौर पर मुआफ़ी नहीं मांगी तो उनकी आने वाली फिल्में तेलंगाना में नहीं चलने दी जाएंगी। कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ताकीद की कि तेलंगाना के अवाम की तौहीन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर फौरी मुआफ़ी मांगी जाती है तब शायद उनकी फिल्में सिर्फ 1 या 2 दिन ही चल सकेंगी। वज़ीर ने यह धमकी अपने उहदे और इख्तियारात की बुनियाद पर दी है, जिससे फिल्म सनत और सियासी हलकों में हंगामा पैदा हुआ है। यह वाक़या वाज़ेह करता है कि पवन कल्याण के बयान पर सियासी तौर पर तेलंगाना में किस कदर नापसंदीदगी पाई जाती है। यह मामला इस वक्त तेलंगाना की सियासत और फिल्म सनत के दरमियान एक नई तनाज़ा को उजागर करता है। కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడి 15 దాదాపు 13 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. తెలంగాణ 13 సంవత్సరంలో పడుతున్నది. ఈ సమయంలో మా తెలంగాణను అవమానపరచొద్దని పవన్ కళ్యాణ్ గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పితేనే తెలంగాణ ప్రజలు క్షమిస్తారు. సార్, నైజాంలోనే చిరంజీవి ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఎక్కువగా వాడుతుంటాయి. వాళ్ళే ఇప్పుడు దాన్ని క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఎవ్వరు కూడా
చిరంజీవి గారికి సంబంధం లేదు. చిరంజీవి ఈజ్ ఏ సూపర్ మ్యాన్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా వివాదాలకు దూరంగా ఉంటారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తగా రాజకీయాలకు వచ్చి డిప్యూటీ సీఎం కాగానే తెలిసి తెలియకనే మాట్లాడిండో, మరి కావాలని తెలంగాణ వాళ్ళని అవమానపరచాలనుకుండో ఏమనుకుండో, కానీ దానికి క్షమాపణ చెప్తే కనీసం ఆయన సినిమా 1-2 రోజులన్నా ఆడుతుంది. చెప్పకపోతే ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ థియేటర్లలో సినిమాలు రిలీజ్ కావు. సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా నేను చెప్తున్నా ఈ మాట. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस के वुज़रा और रहनुमाओं की जानिब से किए गए इज्तिमाई हमले को एक सियासी चाल करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पवन कल्याण पर हमला करके 5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। वजीर ने पवन कल्याण को ये नसीहत की कि वो अब एक अदाकार के बजाय नायब वजीर आला है, लिहाजा जिम्मेदारी से बात करें। उन्होंने पवन कल्याण के बयान पर सख्त सवाल उठाया कि कोनासीमा में नारियल के दरख्तों का सिविक जाना तेलंगाना वालों की नज़रबद की वजह से है। प्रभाकर ने ताज्जुब का इजहार किया कि ऐसा तबसरा करने वाला शख्स कैसे दानिशमंद कहला सकता है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना में सैलाब आया तो हमने इसे आंध्रा के लोगों की बदनजरी नहीं बल्कि कुदरती आफत करार दिया था। वजीर ने पवन कल्याण की इत्तेहादी जमात बीजेपी से खिलकर मुतालबा किया कि वो फौरी मुदाखलत करे। उन्होंने बीजेपी पर जोर दिया कि वो पवन कल्याण से उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात पर अवामी तौर पर मुआफ़ी मंगवाएं। ये बयान तेलंगाना में हुकूमत के हिमायतियों और मुखालिफिन के दरमियान बढ़ते हुए सियासी तनाज़ात की तरफ इशारा करता है। తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాలు కూడా ఒక అన్నదమ్ముల భావంతో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలు. తెలంగాణ తుఫాన్లో మునుగుతుంటే కూడా మేము ప్రకృతి అనుకుంటున్నాం తప్ప ఆంధ్ర ప్రజల తప్పు పడతలేదు. ఎక్కడో కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్టు ఎండిపోతే ఆంధ్రలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వల్ల దృష్టి కలిగిందంటే ఆయన వివేకవంతుడో అవివేకవంతుడో నాకు తెలియదు. నేను ఆ మిత్రపక్షంకు బాధ్యత వహిస్తున్న తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం ఆయన పట్ల స్పందించాలని కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్పందించాలి. స్వయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తున్నది కాబట్టి ఇందులో ఇటువంటి కక్షపూరిత 2 రాష్ట్రాల మధ్యలో వైషమ్యాలు కలిగేటువంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేది దురదృష్టకరం. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆంధ్రాలో తుఫాన్ వస్తే తెలంగాణ మొన్న హుస్నాబాద్ కూడా మునిగింది. మేమేం ఆంధ్ర ప్రజలను తప్పుపడుతున్నది ప్రకృతి వైపరీత్యం కింద భావిస్తా ఉన్నాం. అక్కడెక్కడో చెట్లు ఎండిపోతే మమ్మల్ని దృష్టి కలిగిందని నిందిస్తే ఇది తెలంగాణ పౌరులకు అవమానం. వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి, క్షమాపణ కోరాలి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వివక్షపూరిత మాటలు మాట్లాడద్దు, విజ్ఞతగా వ్యవహరించు. ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇంకా సినిమా నటుడు కాదు, కొంత బాధ్యతగా నేర్చుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి దేశంలో ఉన్నతంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం జరగాలి తప్ప ఇటువంటి వైషమ్యాలను సృష్టించేటువంటి మాటలు మా నుంచి రావు, మీరు మాట్లాడద్దు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आज सदीपेट जिला के हुस्नाबाद हल्का असेंबली का दौरा किया और इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के आगाज में उन्होंने शहर के सुधीश्वर अली मंदिर में महाशिव की खुसूसी इबादत की और मजहबी रस्में अदा की। उसके बाद वजीर मौसूफ ने रेणुका यलममा मंदिर का दौरा किया और वहां भी खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वजीर प्रभाकर ने कल हुस्नाबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी के होने वाले अवामी जलसे के इंतजामात का बाकायदा मुआयना किया। उन्होंने जलसागाह में तैयार होने वाले स्टेज के काम को तेजी और वक्त पर मुकम्मल करने की सख्ती से हिदायत दी। वजीर ने जलसे में शामिल होने वाली गाड़ियों की पार्किंग की जगहों का भी जायजा लिया। उन्होंने पुलिस एहलकारों को आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए अलग खुसूसी रास्ते मुकर्रर करने की हिदायत की। प्रभाकर ने पार्टी रहनुमाओं को भी मशवरा दिया कि पूरा शहर पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया जाए। उनके इस जायजे का मकसद वजीर आला के आइंदा जलसे को कामयाबी के साथ मुनक्किद करना है। ओम तत्सम योर्भ्यः ओर्ध्वन्तिगाद
कांग्रेस के कानून साज कौंसिल के रुकन MLC बालमोरी वेंकट ने नायब वजीर आला पवन कल्याण को उनके मुतनाज़ा बयानात पर इंतहाई सख्त धमकी दी है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर पवन कल्याण ने ज़रा भी शर्म व बाकी है तो उन्हें तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश में क़याम करना चाहिए। MLC ने खबरदार किया कि अगर तेलंगाना के अवाम से फौरी मुआफ़ी न मांगी गई तो पवन कल्याण को तेलंगाना से भागा दिया जाएगा और निकाल बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि उनके सियासी ग्रुप की जानिब से पवन कल्याण की आने वाली किसी भी फिल्म को तेलंगाना में चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बालमोरी वेंकट ने तनकीद की कि पवन कल्याण जब अदाकार थे तो तेलंगाना से मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन अब नायब वज़ीर आला बनने के बाद वो उहदे के तकब्बुर और गुरूर में आकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तेलंगाना के लोगों की तौहीन करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने खिले लफ्ज़ों में कहा कि अगर वो झक कर मुआफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें इस रियासत से भगाकर दम लेंगे। कांग्रेस के इस सख्त मौक़िफ़ ने तेलंगाना की सियासत में मज़ीद गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। సినిమా హీరో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి తెలంగాణ ప్రజల్ని అగౌరవపరిచే విధంగా మాట్లాడటం అనేది చాలా బాధాకరం. గతంలో సినిమాలు ఆడేటప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే నాకు అపారమైన ప్రేమ ఉంది, అపారమైన గౌరవం ఉందని మాట్లాడిన నువ్వు ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి డిప్యూటీ సీఎం కాగానే మతి స్థిమితం కోల్పోయి నీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఈ రకంగా మాట్లాడడం అనేది చాలా బాధాకరము. నువ్వు నిజంగా నీకు సిగ్గుంటే నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకి కుటుంబ సమేతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఉండు. నువ్వు కనీసం సోయి లేకుండా తెలంగాణ ప్రజలు అత్యధిక నీ సినిమాలు చూసి నిన్ను గౌరవిస్తుంటే బల్బుతో ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఈ రకంగా మాట్లాడడం అనేది చాలా దురదృష్టవశాతము. నువ్వు ఇదే రకంగా నీ వైఖరికి నువ్వు తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి క్షమాపణ చెప్పకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీ సినిమాలు ఆడనివ్వము. నువ్వు రేపు పొద్దున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తిరుగుతే నిన్ను పరిగెత్తించి తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వెళ్లి కూడా తెలంగాణ యువత తెలంగాణ ప్రజలు తరిమి కొట్టే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరిస్తున్నా. नलगंदा जिला में बड़े पैमाने पर माली धोखाधड़ी का एक संगीन मामला सामने आया है जिसने अवामी हलकों में खलबली मचा दी। टू वेल्थ कैपिटल सर्विस नामी एक मालियाती कंपनी ने तकरीबन 3,000 अफराद से बड़ी रकम वसूल की। कंपनी ने अवाम से तकरीबन 300 करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अचानक ही अपना दफ्तर बंद कर दिया। इस कंपनी का मरकज हैदराबाद में था और ये नलगंदा समेत दीगर इलाकों में भी सरगर्म थी। कंपनी ने अवाम को माहाना 10% जितना पर कशिश सूद देने का झांसा दिया था। धोखाधड़ी का इल्म होते ही मुतासरीन नलगंदा के मुंतजिम रापुल प्रकाश के घर के सामने एहतजाज के लिए जमा हुए। रंज और गम में डूबे मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी इंसाफ की फरियाद की है। मुतासरीन ने इस संगीन धोखाधड़ी के सिलसिले में मकामी 2 टाउन पुलिस थाना में एक बोरी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अब कंपनी के मालिकान और अहम जिम्मेदारों की तलाश और मामला की गहरी तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद में वाक़ बंडला गुडा पुलिस ने निकाबजनी की वारदातों में मुलव्वस एक बदनाम जमाना चोर संयल शेटी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की 150 से ज़ायद वारदातों में पहले से ही मुलव्वस रहा है। गिरफ्तारी के बाद की पूछगुछ के दौरान मुलजिम ने बंडला गुडा और बालापुर की हुदूद में की घायल वारदातों का भी इकरार कर लिया। बंडला गुडा पुलिस टीम ने मुलजिम की निशानदही पर उसकी पास से बड़ी तादाद में माल मसरूका बरामद कर लिया है। बरामद शुदा चीज़ों में 10 तोला वजनी सोना,
तलाई जेवरात और 10 तोला चांदी के जेवरात शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद शुदा तमाम जेवरात की मजमूई कीमत 10 लाख रुपए से जायद है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस दीगर वारदातों में उसके किरदार के बारे में मजीद तहकीकात जारी रखे हुए है। इस बदनाम चूर की गिरफ्तारी से इलाके के रिहायशियों में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना के करीमनगर जिला से इंसानी जज्बात और सदमे की शिद्दत को बयान करने वाला एक दिलदोज और हैरान कुन वाकया सामने आया है। एक बेटी अपनी वालिदा के इंतकाल के गम से इस कदर मगलूब हो गई है कि वो आम जिंदगी में वापस नहीं आ पा रही। वालिदा के जिस्म को सुपुर्द आतिश करने के बाद ये लड़की गुज़िश्ता 3 दिन से शमशान घाट पर ही कयाम कर रही है। लड़की की ये जज्बाती और परेशान कुन हालत देखकर उसके खानदान और मकामी रिहायशी शदीद फिक्रमंदी में मुब्तला है। खानदान के अफराद बारहा इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर लूट आए, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। मकामी लोगों ने बताया कि बेटी का अपनी वालिदा के साथ निहायत गहरा और जज्बाती लगाव था। इस गैर मामूली कयाम के नतीजे में इंतजामिया और माहिरीन नफ्सियात से मदद की दरखास्तें की जा रही है। मकसद ये है कि मुनासिब मुशावरत के जरिए इस लड़की को इस शदीद सदमे से बाहर निकाला जा सके। ये अफसोसनाक वाकया गम और उसके ज़हनी असरात की शिद्दत को उजागर करता है। जेडी मितला पुलिस थाना की हुदूद में गुज़िश्ता रात आधी रात के करीब एक अनोखा और गैर मामूली वाकया पेश आया। शराब के नशे में धत एक नौजवान खातून ने अवामी मकाम पर शदीद हंगामा आराई की। इस खातून ने सड़क से गुजरने वाले गाड़ी सवारों और पियदल राहगीरों के साथ भी बदकलामी की। खातून ने लोगों को खिले आम गालियां दी, जिसके बाइस इलाके में अफरातफरी और कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। मकामी रिहायशियों की जानिब से फौरी इत्तला मिलने पर जेडी मितला पुलिस ने बरवक्त जवाब देते हुए मौके पर पहुंचने का अमल तेज किया। पुलिस एहलकारों ने मुश्किल के बावजूद हंगामा करने वाली नौजवान खातून को अपनी हिरासत में लेकर काबू पाया। बाद अजान हिफाजती अमले ने इस खातून को बेहतर सेहत और मुनासिब इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया। जेडी मितला पुलिस ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से खातून को हस्पताल रवाना किया। इस वाकया ने अवामी मकामात पर इखलाकी ज़ाब्तों की ज़रूरत और नशे की दहाइयों के मसला को दोबारा उजागर कर दिया है। వీడియో కాదమ్మా, లైట్ చీకటి ఉందండి. లైట్ ఇప్పుడు ఆటో మాట్లాడతాను వెళ్తాను మీ ఇంటికి, కొంచెం దూరం ఉండవు. మన కేసీఆర్ వస్తాడు కదా, ఎక్కడ పోవాలి? ఆంధ్ర కూర్చోండి. మేము వెళ్తాం. మీ ఇల్లు ఎక్కడ? ఇక్కడ रियासती सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सफाई मरीजों की देखभाल और हिफाजती अमले ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए और बाकी बकाया जात अदा किए जाएं। अमले ने इस बात पर गहरा दुख और अफसोस जाहिर किया कि उन्हें गुज़िश्ता 4 माह से अपनी तनख्वाहें वसूल नहीं हुई हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से उन गरीब मुलाजमीन को सख्त माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियासत भर के अस्पतालों में होने वाले इस बड़े एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर फेवर अस्पताल और किंग कोठी अस्पताल में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। मुलाजमीन ने सरकारी हुक्काम से अपील की कि इन खिदमात के लिए फौरी तौर पर नए टेंडर ठेके जारी किए जाएं। उनका मानना है कि नए निज़ाम के तहत तनख्वाहों की अदायगी में बेहतरी आ सकती है। अमले के इस धरने की वजह से अस्पतालों में सफाई और देखभाल की खिदमात पर शदीद असर पड़ा है।
मुलाजमीन ने मुतनब्बे किया है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना जागृति की सदर श्रीमती कलवाकिंतला कविता ने कांग्रेस हुकूमत को तहरीक तेलंगाना के कारकुनान से किए गए वादों की अदम तकमील पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने तहरीक के कारकुनों को शनाख्ती कार्ड, पेंशन और 250 गज जमीन जैसे अहम वादे किए थे। कविता ने वजीर आला पर जोर दिया कि वो अपने वादे के मुताबिक 9 दिसंबर को ही उन मंसूबों के आगाज का बाकायदा ऐलान करें। साबिका MLC ने मुतालबा किया कि हुकूमत को फौरी तौर पर तहरीक कारकुनों के लिए पेंशनें और शनाख्ती कार्ड जारी करने का अमल शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो दरखास्तें जमा कराने के नाम पर गुज़िश्ता 2 साल से सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही है और टाल मटोल से काम ले रही है। कविता ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत तश्कील रियासत के अहम दिन पर भी तहरीक के कारकुनान और उनके खानदानों का एहतराम करने में नाकाम रही। उनका कहना था कि तहरीक के कारकुनों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये बयान तेलंगाना हुकूमत पर तहरीक के मसाइल को हल करने के लिए बढ़ते हुए सियासी दबाव की निशानदेही करता है। తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ మరి మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, కార్యకర్తలు అనేక మంది కూడా ఇవాళ రక్తదానం చేసి మరి రాష్ట్రాని కోసం ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి అమరవీరులను అందరినీ కూడా తలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం సాధించడంలో కేసీఆర్ గారి దీక్ష, విద్యార్థులందరి యొక్క త్యాగాలు, అమరవీరుల యొక్క ప్రాణత్యాగాలు, బలిదానాలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఉద్యమాలు అన్నీ కలగలిపి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడంలో మరి ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమకారులు పాల్గొన్నారో వాళ్ళెవ్వరినీ కూడా ఆ తర్వాతి కాలంలో మరి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారిదే వచ్చినప్పటికీ ఆ కింద స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మినిస్టర్లు కానీ ఎక్కడా కూడా వారిని పట్టించుకోకపోవడం, వారిని రాష్ట్ర సాధన కోసం చేసినటువంటి త్యాగాలను గౌరవించకపోవడం అన్నది కూడా అనేక మందిని బాధించిన విషయం మనందరికి కూడా తెలిసిందే. అదేవిధంగా అమరవీరులు చనిపోతే మనమే అన్ని చోట్ల 1200 మంది చనిపోయినారని చెప్పి మరి కేవలం ఒక 540 మందిని మాత్రమే ఆదుకున్నాం. ఆ ఆదుకున్నటువంటి 540 కుటుంబాలలో కూడా మొన్న ఎల్బీ నగర్లో కూడా నాకు అనేక మంది చెప్పారు, మాకు కనీస గౌరవం ఇవ్వలేదు, మమ్మల్ని ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం రోజు పిలిచి ఒక శాలువ గప్పలేదు, ఒక గుర్తింపు కార్డు ఇవ్వలేదు అనేటటువంటి బాధ అందరిలో కూడా గూడుగట్టు. बिलरामपुर गोंडा शाहरा पर मंगल की अली सुबह तकरीबन 2 बजे एक दर्दनाक और खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 3 मुसाफिर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान शदीद तसादुम हुआ जिसके बाद बस बेकाबू हो गई। हादसे के बाद बस बिजली के एक खंबे से भी टकराई और उसके नतीजे में बस में शदीद आग लग गई। ये बस सुनवली सरहद से मुसाफिरों को लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली की जानिब रवाना थी। हादसे के वक्त बस में नेपाली शहरियों समेत बड़ी तादाद में मुसाफिर सवार थे जिनकी सही तादाद अभी वाज़े नहीं हुई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट वकास कुमार ने इब्तिदाई तहकीकात की बुनियाद पर बताया कि तसादुम की वजह से बस की तेल की टांकी ने आग पकड़ ली थी। उन्होंने तस्दीक की कि बस से 3 हलाकशदा अफराद की लाशें बरामद की गईं जबकि 2 दर्जन से जायद मुसाफिर जख्मी हुए। फौरी इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर 15 अफराद को जली हुई बस से बहिफाजत निकाला। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है जिनमें कुछ की हालत नाजुक है। तेलंगाना में वाक़ई गुरुकुलम हॉस्टलों में खुराक के जहरीले होने के मुसलसल वाक़यात रियासती इंतज़ामिया के लिए तशवीशनाक बन गए हैं। जो गुलाम्बा गढ़वाल ज़िला के सदर मकाम पर मौजूद एसटी हॉस्टल में ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया। हॉस्टल में सुबह का नाश्ता करने के फ़ौरन बाद 15 तलबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। बीमार पड़ने वाले तलबा में मैदे में दर्द और दीगर अलामात दिखाई दी। हॉस्टल के जिम्मेदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासिरा तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया। उन तमाम 15 तलबा को गढ़वाल के सरकारी अस्पताल में दाखिल करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में तलबा की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। वालिदैन और मकामी अवाम ने हॉस्टल में दिए जाने वाले खाने के मेयार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इंतज़ामिया की जानिब से हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए आला सतह की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है।
कौमी सदर श्री अखिलेश यादव ने गिविस में अपने खिताब के दौरान बीजेपी की हुकूमत पर सख्त लफ्जों में तनकीद की और एक मुतनाज़ा मशवरा दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि अगर उन्हें खांसी हो तो इलाज के लिए रिवायती और देसी दवाओं का इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने वाज़े तौर पर कहा कि उन्हें बीजेपी की सरकार के दौर में कफ सिरप, खांसी के शरबत से इज्तनाब करना चाहिए। अखिलेश यादव ने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मकामी अनासिर इस कारोबार में शामिल हैं और नाजायज़ तौर पर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने तनकीदी अंदाज में हुकूमत की इस पॉलिसी को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम का नाम दे दिया। उनके इस बयान से ये इशारा मिलता है कि रियासत में अद्वियात के मेयार और उनकी फरोख्त में बदनज़मी पाई जाती है। सदर कौमी ने इसरार किया कि हुकूमत को फौरी तौर पर सेहत और अद्वियात से मुताल्लिक बदउनवानी पर काबू पाना चाहिए। ये सियासी वार रियासत की सेहत की सहूलियात पर बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा कर सकता है। SIR की प्रक्रियाओं के लिए सरकार ने डेट बढ़ा दी है। मैं आपसे कहूँगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ODOP नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली हम लोगों ने जानकारी कर करके कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ODOM, ये बीजेपी के, इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की तैव भनू को ब्रूजमिंग 2-10 मुबर उनसे मुलाकात की रसाई फराहम कर दी गई। बहनों को ये इजाज़त जेल इंतज़ामिया से घंटों के कशीदा इंतज़ार और मुसलसल दरखास्तों के बाद हासिल हुई। इस पेशरफ्त को इमरान खान की खराब होती सेहत और PTI हामियों के बढ़ते हुए इस्तिराब के तनाजुर में एक अहम कामयाबी समझा जा रहा है। मुलाकातों पर लगने वाली हफ्तों की पाबंदियों की वजह से जेल इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त बेचैनी पाई जाती थी। अलावा अज़ीं सोशल मीडिया पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश के हवाले से गैर तस्दीक शुदा अफवाहें तेजी से फैल रही है। उन गैर मुसद्दिका अफवाहों ने अवामी परेशानी और गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया है। PTI के कारकुनान जेल में अपने कायद की हिफाजत के बारे में मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बहनों को इजाज़त मिलने का ये फैसला बढ़ते हुए सियासी दबाव को किसी हद तक कम करने की कोशिश नजर आता है।